ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক ব্যবহার, দখলদারির উচ্ছেদ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোতাওয়ালি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এদিন মিল্লিয়া আল আমিন কলেজের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মুতাওয়ালিদের কোণঠাসা ও ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য, বেআইনিভাবে ওয়াকফ সম্পত্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এই ওয়াকফ সম্পত্তির কীভাবে সাধারণ মানুষে উপকৃত হবে সে বিষয়ে ওয়াকফ বোর্ডকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এদিন মুতাওয়ালি অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সি, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ নাদিমুল হক সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ওয়াকফ বোর্ডের প্রাক্তন সদস্যরা। এদিনের এই মিটিংয়ের অন্যতম আহ্বায়ক গোলাম রাসুল ও অন্যান্যরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, देखिए एक्चुअली मेरी यही राय है कि देखिए आजकल हर जगह ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है, ना कि सिर्फ वक्फ बोर्ड, आप हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, हर एक मैटर को बहुत टाइम लगता है सॉल्व होते हुए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ इतना अचानक से नहीं हो जाता है। आप अगर अपनी चीज़ के लिए मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। ওয়াকফ সম্বন্ধে একটা ব্যাড ধারণা সব জায়গায়, ওয়াকফ স্ক্যাম, ওয়াকফ স্ক্যান্ডেল এইসব নিয়ে যেন মিডিয়া চলে, কিন্তু ওয়াকফে অনেক ভালো কাজও হয়। ওয়াকফের মধ্যে ভালো কাজ যেগুলো হয় তার মধ্যে কিছু উনি বললেন, আরও অনেক ভালো কাজ যেগুলো আমরা করতে পেরেছি মালদাতে ও অন্যান্য জায়গায়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করতে পেরেছি, এইসব করতে পেরেছি। তবে হ্যাঁ, আমরা এইসব যে করতে পারছি এইগুলো কিন্তু ওয়াকফ বোর্ডের খুব একটা সহযোগিতা সব সময় থাকে না। সব গভর্নমেন্ট অফিসে যেরকম একটা অনীহা কাজ করাতে ওয়াকফ বোর্ডেও একটা অনীহা থাকে। আমরা মোতাওয়ালি অ্যাসোসিয়েশন এই জন্যই করেছি যাতে মোতাওয়ালিরা ঐক্যবদ্ধভাবে ওখানে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যাতে আমাদের ভয়েস, আমাদের আওয়াজ যারা শুনতে বাধ্য হয় এবং আওয়াজটা আমাদের সরকারের কাছে পৌঁছতে পারে। ওইখানে আমাদের চিরকালের জন্য একটা অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, আমাদের মোতাওয়ালির জন্য করা জায়গায় সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মোতাওয়ালির বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে। সেইগুলো কিন্তু আমরা না থাকলে এটা প্রত্যেকটা মোতাওয়ালি আরও বিশেষ অসুবিধায় পড়ে যেতেন। আমরা আছি বলে, আমরা চাপ দিচ্ছি বলে, আমরা ওখানে চেল্লাচিল্লি করতে পারার ক্ষমতা রাখি বলে মোতাওয়ালিরা অন্তত কিছুটা কাজ না পেলে আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন যাই সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বললে সে কাজ করতে ওরা বাধ্য হয়। এছাড়া অনেক জায়গা আছে যেখানে মোতাওয়ালিরাও দোষে আছে, সেখানে সেই মোতাওয়ালিগুলোকে বাদ দিতে হবে। আমরা মোতাওয়ালি মেম্বার, কিন্তু আমরা নিজেরাও মোতাওয়ালিদের বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি, যেখানে তছরুবাদ করছে, যেখানে বোর্ডকে ভুল বুঝিয়ে মোতাওয়ালি হয়ে বসে আছে সেখানেও করতে হচ্ছে। তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়তে হয়। কোথাও পলিটিক্যাল সমস্যা, ওখানে জিওগ্রাফিক্যাল সমস্যা, কোনো এমন ওয়াকফ স্টেট আছে যেটা নদীতে চলে গেছে, নদীতে ভেঙে নদীতে চলে গেছে। তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সমস্যা আমরা সম্মুখীন হতে হয় এবং আমরা সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করি, মোতাওয়ালিকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা এমনই হয়ে গেছে এখন পুরো পশ্চিমবঙ্গে, সে কুচবিহার থেকে, দার্জিলিং থেকে, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদা, সব জায়গায় আমাদের মেম্বার আমাদের কাছে ছুটে আসে। মাসের প্রথম রোববার আমাদের মিটিং হয় এবং আমরা এখন চেষ্টা করছি যারা দূর থেকে যারা আসতে অসুবিধা তারা যেন অনলাইন মিটিংয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যারা মোতাওয়ালি তারা, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর একটা রহমত আমাদের উপরে আছে। আল্লাহ আমাদের তার ঘরের খিদমত করার যে দায়িত্ব দিয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এই দায়িত্ব সাধারণ মানুষ পায় না, আল্লাহর রহমত আছে বলেই এই দায়িত্ব আমরা পেয়েছি। আল্লাহর ঘরের খিদমত করা, আল্লাহর ঘরকে দেখাশোনা করা মানে উই আর কেয়ারটেকার অফ দি প্রপার্টি অফ আল্লাহ। এবং ইমানদারির সাথে এই কেয়ারটেকারের কাজ যদি আমরা করতে পারি, আল্লাহর ঘরের দেখাশোনা করতে পারি, আল্লাহ খুশ হবে এবং আল্লাহ আমাদের হয়তো সব গুনাহ মাফ করে উপরে আমাদের তার কাছে জান্নাত হাসিল করাবে। তাই ভাই, আমি এই ওয়াকফ স্টেটের দায়িত্ব পেয়ে আল্লাহকে মন থেকে শুকরিয়া আদা করি যে আমি খিদমত করেছি। যারা ওই বস্তিতে ছিলেন তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করে তাদের
হাউজিং ফর আরবান পুয়ারে নিয়ে গেছি। ওখানে ওয়াকফ বোর্ডের জন্য একটা হোস্টেল তৈরি করেছি, স্টুডেंट হোস্টেল। को लिख करके मैं बताऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वक़फ़ को इससे बाहर रखा जाए, इनकम टैक्स एक्ट से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा इनकम टैक्स से वक़फ़ स्टेट्स जितने हैं उनकी इनकम को बाहर रखा जाए। और एक ठेका टेनेंसी का मसला आ रहा है कि वक़फ़ की जायदाद इसमें मेरे ख्याल से फराद हकीम साहब ने कुछ बात कही है, तो हम इस पर हम ठीक से सुने नहीं हो क्या बोले, तो जो बोले वही उसके साथ हम उनको तायद करते हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपके तमाम मीडिया के थ्रू गुलाम रब्बानी की आवाज़ जितनी दूर तक जा रही है और मुतवल्ली की आवाज़ जितनी दूर तक जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुतवल्ली ये नहीं सोचें कि मुतवल्ली आज के डेट में अकेले हैं। उनकी बात अगर वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, उनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारा वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उनकी बातों को सुनते आ रहा है, अभी भी सुना है, फ्यूचर में भी सुनेगा और आपकी बातों को आगे लेके जाया जाएगा। आप लोग जैसे जानते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में जिस तरह का दुर्व्यवहार उस चीज़ को लेकर हो रहा है, मुतवल्ली मर कर चले जा रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को दूसरा कोई डेवलप करके चले जा रहा है। ये चीज़ को तमाम चीज़ों को वक्फ बोर्ड के सामने में लाने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए दो ही नाम हम लोग हमेशा देखते हुए हैं, वो अनीसुल हक साहब और हमारे ऑनरेबल एक्स बोर्ड मेंबर खान साहब। इन तमाम को बातों को हम लोगों ने सुना है। बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से मुतवल्ली भाई लोग आए हुए थे, बहन लोग आई हुई थी और तमाम लोगों ने अपनी बातों को यहाँ सामने रखा है और ये बात को हम लोग जो है आने वाले वक्त में नौबन्ना सरकार तक भी लेकर जाएंगे और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे नदीमुल हक साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी बात को आगे लेकर जाएँ। आप लोगों ने वो भी शायद रिकॉर्ड किया होगा, जिस तरह से फ़िराद हकीम साहब ने आज आने का वादा किया था लेकिन उनका कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया था। वो वीडियो मैसेज को भी आप लोग दिखाएं लोगों को, ताकि मुतवल्ली भाइयों को ये मालूम हो कि फ़िराद हकीम साहब जिस तरह से नॉट बीइंग अ मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने ये बात कहा है हम लोगों के सामने, जब वो मिनिस्टर नहीं थे तब से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से किस स्केल में उसको डेवलपमेंट किया है, कहाँ तक उसको लेकर गए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। जो आज के डेट में एक मिनिस्टर भी आज मुतवल्ली है, तो एक मुतवल्ली आने वाले डेट में वाकई में अपना हक को अदा कर सकता है। उनसे प्रेरित होकर, फ़िराद हकीम से प्रेरित होकर, नदीम भाई से प्रेरित होकर, तो हमारी मुतवल्ली भाइयों को, बहनों को, गुलाम रब्बानी और हमारे तमाम जितने भी मेंबर्स हैं मुतवल्ली एसोसिएशन के, मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, जैसे इमरान भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, अकील भाई हैं, मोइन भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, सैफुल्ला भाई, ज़हीर अब्बास भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, राहिल ज़फ़र, सनाउल्लाह हुज़ैफ़ा, नौशाद हुसैन, इब्राहिम भाई, अनीसुर रहमान भाई, ज़हीर अहमद, अज़हर, राहिल भाई, मोहम्मद अली और ज़हीर अब्बास, ये तमाम लोगों ने आज मुतवल्ली के तमाम बातों को सामने लेकर आए हैं। मुतवल्ली के बातों को हम लोगों ने सुना है, इंशाल्लाह उसको लिखित में हम लोग जो है ऑल वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसको वक्फ बोर्ड में प्लेस करेंगे, सीईओ साहब को प्लेस करेंगे, ताकि जिस तरह कुछ मैटर्स उसमें कवर किया गया है, जैसे इनकम टैक्स को लेकर कवर किया गया है कि इनकम टैक्स को यहाँ से पूरा वक्फ के प्रॉपर्टी के इनकम के ऊपर से इनकम टैक्स को हटाया जाए, वक्फ के ऊपर से जीएसटी को हटाया जाए और वक्फ के प्रॉपर्टीज़ में जिस तरह का ठेका टेनेंसी का कब्ज़ा है उसको भी हटाया जाए, उसके ऊपर अमेंडमेंट लाया जाए और तमाम लीज़ रूल्स को जो सामने लाया है हमारे ऑनरेबल जस्टिस सईदुल्लाह मुंशी साहब ने, वो तमाम चीज़ों को सामने लाई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को एग्जाम कर सकते हैं कानून के मुताबिक। जिस तरह से एक मैंने वीडियो देखा था, यूपी का वीडियो था, उसमें कहा था कि हम लोग जो है मस्जिदों को भी शहीद करेंगे, कबर में भी हमारे पीर मुर्शिद कबर में भी हथौड़ा चलाएंगे कानून के मुताबिक। तो इसी तरह से वफ़ का एक्ट भी बहुत मजबूत है। वफ़ का एक्ट में एक बहुत सख्त एक्ट है, उसमें कहा गया है वफ़ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट। मतलब आने वाले वक्त में और पास्ट में जितना भी एक्ट बना है वफ़ का एक्ट जो है उसके ऊपर में उसको लागू होता है। इससे क्लियरली साबित होता है कि वफ़ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, विच मीन्स कि वफ़ के एक्ट के ऊपर में कोई नहीं चलेगा। वंस अ वफ़ इज़ ऑलवेज अ वफ़। एक बार जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वेस्ट हो चुका है वो सेकंड टाइम वेस्ट, चाहे वो ठिका में हो, बरगदा में हो या किसी भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वफ़ की प्रॉपर्टी को लेकर बैठा हुआ है, इसके ऊपर में अमेंडमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। इसका आवाज़ भी जो है वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उठाती आ रही है। आज भी इस बात को आगे ले जाया गया है और इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारे और हमारे तमाम मुतवल्ली भाइयों का यही कोशिश रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए हम दूसरी मुतवल्ली भाइयों की प्रॉपर्टी को किस तरह से उनका हेल्प करें।
यही हमारी कोशिश रही है, मुतवल्ली एसोसिएशन का यही आवाज़ रहा है। और खान साहब का, फाकुज़्ज़मा खान साहब का और अनीसुल हक साहब का ये हमेशा ये मेहनत रहा है कि मुतवल्ली का भलाई कहाँ से हो, यही उनका मैसेज है। एक सवाल है कि बाज़ दफ़ा देखा गया कि बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी में बहुत सारे इलीगल मुतवल्ली है जो बैठे हैं, जो अपने आप को मुतवल्ली कहते हैं, बट एक्चुअली में वक्फ बोर्ड से उनको मुतवल्ली का कोई राइट या कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता और वो इसी बेसिस पे काफ़ी सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ तक वक्फ की प्रॉपर्टी को वो बेच देते हैं। इसके ऊपर भी क्या कोई वक्फ या दखल का या आपका ये मुतवल्ली एसोसिएशन कोई एक्शन लेने वाला है? जी, इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि अभी हमारे एक्स मेंबर अनीसुल हक साहब ने कहा कि बीइंग अ मेंबर मुतवल्ली रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, उन्होंने बहुत ऐसे मुतवल्ली को वक्फ से खारिज किया है, मुतवल्लीशिप को रिजेक्ट किया गया है क्योंकि वो फॉल्स मुतवल्लीशिप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, मे बी क्लरिकल एरर्स हो सकता है कि आदमी से गलती हो सकता है, लेकिन वो गलती को भी सुधारा गया है। ये नहीं कि वो मुतवल्ली के रिप्रेजेंटेटिव है तो मुतवल्ली के हक में ही बोलेंगे। मुतवल्ली जहाँ गलत करता है तो वो मुतवल्ली के खिलाफ भी खड़े होते हैं और मुतवल्ली को बाहर भी निकाला जाता है, मुतवल्ली को रिजेक्ट भी किया जाता है। ये हमारा अनीसुल हक साहब का ये हमेशा मेहनत रहा है और बोर्ड मेंबर हमारे हक साहब और खान साहब का यही मेहनत रहा है कि राइटफुल मुतवल्ली है वो अपने प्रॉपर्टी का देखभाल करें, सही से करें, अदरवाइज उनके ऊपर भी एक्शन लागू होता है अंडर सेक्शन 64। सर एक लास्ट सवाल है कि ये ज़बरदस्ती का मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा मामला भी सामने आया कि जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है जहाँ पर मुतवल्ली खानदान दर खानदान से उनके चले आ रहे हैं, बट असल में क्या मसला है कि जब उनके विल के हिसाब से जब उनको बनना चाहिए था वो नहीं बन पाते, उनका नौजवान बेटा अगर बन जाता है तो चाचा या ताया उनके ऊपर में वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बनाते हैं कि आप इसमें मुतवल्ली नहीं है, या टेनेंट को बताया जाता है कि वो मुतवल्ली नहीं और उनसे भाड़ा जबरन वसूल किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई एसोसिएशन या वक्फ बोर्ड के ऊपर में सख्त कार्रवाई करेगी? देखिए, जो भी मुतवल्ली बनता है एज़ पर वफ़ एक्ट के तहत बनता है। वफ़ एक्ट चलता है जो हमारे वफ़ नामा में, वफ़ डीड में लिखा रहता है। जैसे कुछ वफ़ डीड में लिखा रहता है वफ़ुल औलाद रहता है, पब्लिक वफ़ होता है। जिस वफ़ में मस्जिद और मज़ार शामिल होता है वो पब्लिक वफ़ रहता है, और जो औलाद रहता है उसमें मस्जिद और मज़ारें नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो भी अपॉइंटमेंट होता है मुतवल्लीशिप वफ़ बोर्ड जो देता है वो वफ़ डीड के हिसाब से देता है। अगर वो चाचा ताया मामा चाचा फुफेरा भाई ममेरा भाई चचेरा भाई अगर वो बोलता है कि मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूँ तो वफ़ बोर्ड आपके लिए खुला है, वहाँ अर्जी करें आप। और वफ़ बोर्ड तो आंख बंद करके आपको हियरिंग करके आपको तो ये नहीं देगा, मुतवल्लीशिप नहीं देगा। वो वफ़ डीड को देखेगा कि आपके वफ़ डीड में आपके वाकिफ़ ने क्या लिखा है, आपके परदादा दादा के परदादा ने क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपके चाचा और आपके मामा और सब मिलकर जॉइंट मुतवल्ली होंगे तो वफ़ बोर्ड आपको जॉइंट मुतवल्ली बनाएगा। अगर आपको बताया गया है वफ़ डीड में कि आप सिंगल मुतवल्ली होंगे तो आपको सिंगल मुतवल्ली बनाएगा, उसमें किसी की भी आवाज़ शामिल नहीं हो सकती है। मगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर प्रमोटर जो है आंख गड़ा कर बैठे हैं और 50-50 रेशियो के ऊपर में काम हो रहा है, करोड़ों रुपये का टर्नओवर होता है और वक्फ बोर्ड को बताया भी नहीं जाता, करोड़ों रुपये दबा लिया जाता है, जिससे वक्फ बोर्ड का फंड का जो है मामला बहुत कमज़ोर होता जाता है। देखिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए कोई एक्ट है तो आप बताएं मुतवल्ली एसोसिएशन को, उस एक्ट के तहत चलेगा, क्योंकि जो भी होगा वो वफ़ एक्ट के मुताबिक होगा, वफ़ एक्ट के बाहर नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो आप सामने लाइए, वफ़ बोर्ड सामने है, सीओ साहब सामने हैं, वो अपना उनको लिखिए, उनको आप कंप्लेन करें, उनका एक्शन लें, वो एक्शन ज़रूर लेंगे, उसको बैठे हैं एक्शन लेने के लिए। जब तक उनको नहीं बताया जाएगा, ये सिर्फ ज़बानी बात करने से नहीं होगा। हम मीडिया में कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलिएगा, आपके बारे में आपको अगर किसी के बारे में कुछ बोलता है कि भाई फलाना प्रॉपर्टी का मुतवल्ली कर ले, लेकिन उसके तो प्रूफ चाहिए ना, आप प्रूफ ला के दीजिए, वफ़ बोर्ड उसका बैठा हुआ एक्शन लेने के लिए। जब वफ़ बोर्ड एक मुतवल्ली को रिजेक्ट कर सकता है तो वफ़ बोर्ड ऐसा कितना एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। वक्फ एसोसिएशन, वक्फ बोर्ड मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ ताकि यहाँ पे जो आगे की जो कार्रवाई है उसको जिस तरीके से करना है उसके बारे में डिटेल वाइज वक्फ एसोसिएशन बताएंगे। और बाकी मैं चाहता हूँ वक्फ मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से कि जो मुतवल्ली की जो परेशानी है उसको हल करे जाए। जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है लोगों ने और इलीगल तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। और जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के साथ में लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और वहाँ पे अपने मतलब एक तरीके से मुतवल्ली को जाने से रोक रहे हैं, बहुत से लोग हैं उसमें। और ये क्या नाम है इसका, अपने ज़करिया स्ट्रीट में बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 100 कैनिंग स्ट्रीट में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये अपना नारकल डांगा 73 नंबर नारकल डांगा 7 बीघा ज़मीन है, उसके ऊपर भी कोई बाहर के लोग कब्जा कर रखे हैं, वहाँ जाने से लोग रोकते हैं। और भी बहुत सारी जगह है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ मुतवल्ली एसोसिएशन अपनी नज़रसानी करे
बोलने की मत जो आपने बताई पहले तो बोले जो अभी तक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आपके भी प्रॉपर्टी पे कुछ जगह हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड आपको कितनी सपोर्ट कर रही है इस बारे में? वक्फ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और बाकी हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी 73 नंबर नारकेलडांगा में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको रुकवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और भी सब बहुत सारी जगह हो रहे हैं।